رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں گھس جانے کے بعد، رنگ لاتی ہے ہنا پتھر میں گھس جانے کے بعد، سرخرو ہوتا ہے انسان ٹھوکرے کھانے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی امپورٹنٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے ایک ویلاگ کے ساتھ آپ کا میزبان منظور استوری DBC ٹائم کے ساتھ۔ ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں وادی دیوسائی بیس کیمپ چلم شیرکلی میں، جہاں پر گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول میں امپورٹنٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے ایک سیشن منعقد ہوا، اور یہ جو سیشن ہے اس سے محکمہ ایجوکیشن کے جناب ADI افتخار احمد صاحب بریفلی امپورٹنٹ آف ایجوکیشن کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ جب تک ہم اپنے معاشرے میں ایک کوالٹی ایجوکیشن نہیں دے دیں گے، وہ معاشرہ بوسٹ نہیں کرتا ہے۔ اس معاشرے کو بوسٹ کرنے کے لیے ایک سوسائٹی کو اویئرنیس کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آج کا یہ بڑا امپورٹنٹ سیشن اسی حوالے سے ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کہ کوالٹی ایجوکیشن کیسے دے دیں گے، ہم اپنے معاشرے کو کیسے بوسٹ کر لیں گے۔ اس حوالے سے یہ پورا سیشن ہے۔ جناب افتخار احمد صاحب اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ اس پروگرام کے بعد میں خود جو ہے شرمندہ رہا۔ یہاں کے معصوم بچوں نے جس لیول پر پروگرام کو پریزنٹ کر دیا وہ بالغ آرائی نہیں ہے، میرا مالک جانتا ہے۔ یہ کالج کا کیلیبر ہے، یہ یونیورسٹی کا کیلیبر ہے۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی بچہ بچی اس کانفیڈنس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ اس طرح کا بامعنی پروگرام جو ہے وہ پرفارم نہیں کر سکتا۔ اسپیشلی جو کمپیرر تھا، میں بھی ماضی میں چھوٹا سا کمپیرر تھا، لیکن ان کے سامنے میں شرمندہ رہا۔ جس لیول پر اس نے کمپیرنگ کی اور جس لیول پر جس نے آنا ہے، جو میسیج دینی کتنی بعمل تھی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو ملت کے مقدر کے ستارے بنا دے، تاکہ یہی بچے آنے والے بچوں کے مسیحا بن جائیں۔ میری ماں، میری بہنوں، آج ہم یہاں پر آئے ہیں تو ہم آپ کو سلام پیش کرنے آئے ہیں۔ ہم آپ بہنوں کو سلام عقیدت پیش کرنے آئے ہیں۔ یہ کو دے دوں گا، آپ بہنوں کو دے دوں گا، اور آپ پھر یہاں پر آ کر مطمئن نہ رہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے 0 لیول پر سفر کر دیا ہے۔ آپ نے صرف گھر سے سکول تک پہنچے ہیں۔ اب آپ کے بچوں نے دانش انسٹیٹیوشن میں ابھی پہنچے نہیں ہیں، آپ کے بچے علی انسٹیٹیوشن میں ابھی نہیں پہنچے ہیں۔ آپ کے بچے دنیا کے کمپٹیٹو جو میدان ہے اس میدان عمل میں ابھی نہیں اترے ہیں۔ تو اٹ مینس ہمارا سفر ابھی ادھورا ہے۔ اس سفر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میری ماؤں، میری بہنوں، آپ کو مورک ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ جس زمین سے آلو کی کاشت کرتے ہیں وہ 1 سال کے بعد کیش شکل میں 10,000 روپے دے رہا ہے، لیکن بچوں کے اوپر جو آپ کی آبیاری ہے، وہی بچے پوری ملت کو بنا رہے ہیں، وہی بچے آپ کی قسمت کے جومر ہیں، وہی بچے اس کی آئیڈینٹی ہے۔ تو لہٰذا آپ اور زیادہ مورک رہے۔ آپ کے مورک ہونے کا یہ مقصد نہیں کہ بس آپ صرف سکول میں آئے ہیں اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، نہیں۔ آپ بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل اپنے گھر میں بنا دیں، آپ ایک ڈیلی سکول کو اپنے گھر میں بنا دیں۔ آپ کا بچہ صبح اٹھ کے نماز پڑھے، آپ کا بچہ قرآن کو اپنے دل سے لگا لے، آپ کا بچہ دوڑ کر مدرسہ جائے، آپ کا بچہ دوڑ کر مسجد جائے، آپ کا بچہ جا کر مریضوں کی عیادت کرے، آپ کا بچہ جا کر کسی روٹین صحت کا کام کر لے۔ تو اٹ مینس کہ آپ کی تربیت کا اثر ہے، تو ایجوکیشن خود بخود آپ کے بچوں کے دروازے میں دستک دے گی۔ اگر ہم نے جیسے میرے محترم امتیاز صاحب نے بتا دیا، اخلاقیات کو، تربیت کو پس و پشت رکھ کر بس تقریریں ہم نے ازبر کرا دی، ٹیبلوں کو ہم نے ازبر کرا دیا، کمپیننگ کو ہم نے ازبر کرا دیا، تو یہ میرے نجات کا، آپ کے بچوں کے نجات کا ذریعہ نہیں۔ آپ کے بچوں کی روح کے اندر، آپ کے بچوں کے دل کے اندر جو ہے تربیت کے وہ آثار اور رموز ڈیولپ ہونی چاہیے کہ دور سے پہچانا چاہے کہ یہ بچہ شیرپوری کی ماں کا بچہ ہے، یہ بچہ سرزمین شیرپوری کی ہے۔ یہاں کی داستان بہت پہلے سے بڑی زرخیز رہی ہے۔ ہم 1988 میں دار سکول میں آئے ہوئے تھے، اس وقت بھی یہاں کے جو بچے تھے، میرے محترم آغا صاحب اخلاق کے بیکر تھے، وہ بچے ادب کے مجسمے تھے۔ ان بچوں کی روح میں، گوشت میں، پوشت میں طاقت کا ایک بہت بڑا لہو ہمیں دیکھنے کو مل جاتا تھا، اور ان بچوں کو بہتری کی طرف جذب کرنے میں ایک طفلی میں ٹیچر رہے ہیں یا آج ٹیچر ہیں، ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ
हमारे भी साथ में थी, क्योंकि जो बच्चे तरबियत के मोहताज होते हैं, तालीम के मोहताज होते हैं, उनको तरबियत और तालीम जब दी जाती है तो वो सदके जारिया समझ के अपने दिल में लगा लेते हैं और उन्हीं की फैज से हम सब मुस्तफीद हो जाते हैं। तो मेरे माँ मेरी बहनों, आपने ये न समझना कि हमने अपना सफ़र मुकम्मल कर दिया, बस अब हम जाएंगे घर में। आप ये धूप को तेज न समझ लें, ये धूप जो है आपके बच्चों को कुंदन की तरह गर्म कर देगी। आपको अगर यहाँ 20 घंटा बैठना हो तो आपने तैयार होकर बैठना है कि हम अपने बच्चों के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको अगर कहीं जाकर जंग लड़नी है तो आप इस अज़म से जा रहे हैं कि आपने अपने बच्चों को मुजाहिद बनाना है। आपने अगर कहीं जाकर भूख को ज़िम्न में रखना, प्यास को ज़िम्न में रखना है तो उनके पीछे आपकी जो ख्वाब है वो ये कि आपके बच्चे आने वाले दौर के बाकमाल इंसान बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सुकालर बने। तो मेरी माओ, हम आज आपको सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। सलाम अकीदत के साथ आपसे उम्मीदें हमारी यही वास्ता है कि कमिंग जो हमारी एलिमेंट्री बोर्ड के एग्जाम है, इंशाल्लाह हम यही उम्मीद रखेंगे कि फिफ्थ का बच्चा क्लास 1 से लेकर 10 तक शिरपुरी के बच्चे आने चाहिए और जरूर आएंगे जब आप मेहनत करेंगे। अकेला टीचर मेहनत करके बच्चे को उस मंजिल की तरफ नहीं लेके जाता जिस मंजिल की इस दौर को जरूरत है। अकेला माँ भी मेहनत करके बच्चे को उस मंजिल की तरफ लेके नहीं जाते हैं। बच्चों को मयार इंसानियत की तरफ लेके जाने और बुलंदी की तरफ लेके जाने के लिए हम सब मोरिक रहे तो तब वो बच्चा वो बच्ची कारहान नुमा अंजाम दे सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं एजाज की, ये मेरे अजीज है, मेरे शागिर्द हैं और आज मुझे फख्र इस बात की है, शफा भी इधर आता है तो मेरा शागिर्द है, एजाज भी इधर आता है तो मेरा शागिर्द है, अबूजर भी इधर है तो मेरा शागिर्द है, असलम भी इधर है तो मेरा शागिर्द है। शागिर्दों के साथ उस्ताद को बैठकर जिंदगी के जो खूबसूरत लम्हात गुजरते हैं उसका एहसास उसी उस्ताद से पूछे जिस उस्ताद की उस शागिर्द को बनाने में कुछ मेहनत शामिल है। वो मेहनत खाए तेज धूप में थी या वो तूफान में थी या वो अमन में थी या वो हालत जंग में थी। बाकमाल टीचर वही होता जिसके शागिर्द कमाल में पहुंच जाते हैं और बाकमाल उस्ताद वही होता है जो कौमों के अंदर वो नक्कुश जिंदा कर ले कि कल उसके मरने के बाद उसकी तारीख जिंदा हो जाती है। तो मेरी माओ मेरी बहनों, हम आपको सलाम अकीदत पेश करेंगे और उसके साथ साथ हम सब के ऊपर जो अम्ब्रेला है हुस्नुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मेरे मोहसिन शेख के साथ साफ है, हम इसकी क़यादत के अंदर हैं। आज अगर यहाँ पर मारफी वालों ने कोई काम किया है तो उसके पीछे शेख के साथ साफ की जंग शामिल है। आज अगर रूपानी की तरफ से कोई कंट्रीब्यूशन रिजल्ट केस बना है तो उसके पीछे भी जो कोऑर्डिनेशन है वो मेरे मोहतरम एहसान साहब का है। अगर किसी और डोनर को इंटरेक्ट करना है उसमें भी मेरे मोहतरम एहसान साहब और उसकी टीम का बड़ा किरदार है। अगर आर्मी से भी बात करनी है तो मेरे मोहसिन एहसान साहब और उसकी टीम जाकर आपकी नुमाइंदगी कर रहे, अपनी जात की नुमाइंदगी नहीं कर रही है। तो ऐसे अजीम लोगों की अजमत को जब आप जान जाओगे, तक़वियत दे दोगे, तक़द्दुस दे दोगे, उनकी खिदमत को सलाम अकीदत पेश करोगे, माए तन्हाई में उनकी बुलंद दर्जात के लिए दुआएं करेंगे, तो यही लोगों के सहारे पर आपकी मिल्लत एक बावकार मिल्लत बन सकती है। आपके मासूम बच्चे एक बावकार नौनहाल बन सकते हैं। आपकी ये बात बेटियां बाकमाल सीरत की दाई बन सकती है। तो मैं आगा एहसान साहब से यही उम्मीदें वो वास्ता रखूंगा, आपने बच्चों की रूहानी तरबियत को ज़्यादा फोकस करेंगे। आप घरों के अंदर के इदारों को हर घर स्कूल बना दे, हर अज़ा खाने को स्कूल बना दे, हर मस्जिद को स्कूल बना दे, क्योंकि बच्चा स्कूल की दुनिया में सब कुछ सीख सकता है। स्कूल से जाने के बाद फिर बच्चों में बेगानी आ जाती है। तो दौर बड़ा पुरजोर है, मुकाबले का दौर है। मैं कंपेरेटिवली बता दूं कि अगर ये बच्चे हमारे गिलगित पब्लिक स्कूल में होते, अगर ये बच्चे आगा खान हायर सेकेंडरी में जाते, अगर ये बच्चे कैडेट कॉलेज में जाते तो वल्लाह कहता हूँ कि वहाँ की सोसाइटी को ये कम्पीट कर जाते। और यहाँ के ये जो टीचर हैं ये पब्लिक स्कूल में जाते तो वक़्त के अरस्तू यानी उनके सामने कुछ न होता, सुकरात जो उनके सामने कुछ न होता। आज हम यहाँ पर मुदहम हैं, हमारे टीचर मुदहम हैं। उसकी बात यही है कि कम्युनिटी की तरफ से तकलीफ नहीं है, माओ की तरफ से टीचर की डिग्निटी को नोट किया नहीं जाता। एजाज साहब को हुकूमत ने बड़ा सराहा, सीबी लेवल पर फर्स्ट अवार्ड लेने वाला बेस्ट टीचर जो मेरा वो मेरे ख्याल में मेरे मोहतरम सर एजाज ठहरे। और ये किसी की
नहीं था। चिराग से DI साहब की टीम एक्सीडेंटल जब इस स्कूल में आ गई, बच्चों ने प्रेजेंटेशन दे दिया, यहाँ पे IT लैब देखा, यहाँ की लाइब्रेरी देखी, यहाँ का नज़्म ज़ब्त देखा, स्कूल के इन्वायरमेंट को देखा। देखने के बाद वो गुलिस्तान साहब ने कहा कि जी इस सर के सामने तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि उससे पहले बेस्ट टीचर डिस्ट्रिक्ट लेवल के अलग होते थे, GB लेवल के अलग होते थे। पिछले साल जब सर एजाज को GB लेवल का जो अवार्ड मिला, पूरे GB लेवल पर सर एजाज वाइट टीचर थे जिसको ये अवार्ड मिला। इस अवार्ड के पीछे सर एजाज की कलीदी किरदार है, उसकी टीम की कलीदी किरदार है, आप मामू का इज्तिमाई किरदार है और यहाँ के वॉलंटियर का कलीदी किरदार है। अगर आपका ताउन साथ न होता तो मेरे ख्याल में ये इदारा जो है इस तरह फला नहीं फूल जाता। और उसके साथ मेरे ऑनरेबल एजाज साहब को दूसरा अवार्ड मिला। वो अवार्ड जो है आर्मी की मेरे ख्याल में जायजा लिया गया था और DC की तरफ से खामोश असेसमेंट थी। उस असेसमेंट के अंदर हमारा भी अपना एक रोल था। एजाज साहब को पता नहीं था, अचानक पिछले यानी सितंबर में एजाज साहब को बुलाकर पूरी डिस्ट्रिक्ट में एजाज साहब को अवार्ड दिया गया। तो ये आपका सर फख्र से बुलंद है, आपकी माओ का सर यहाँ फख्र से बुलंद है, आपके जियाना में जो जिम्मेदारियाँ हैं वो इम्तियाज साहब फुलफिल करेंगे। हमारी जगह में जो जिम्मेदारियाँ हैं हमारे शागिर्द हैं मेरे शफा साहब वो पूरी करेंगे। बाकी इस प्रोग्राम के बाद मैं खुद जो है शर्मिंदा रहा। यहाँ के मासूम बच्चों ने जिस लेवल पर प्रोग्राम को प्रेजेंट कर दिया वो बालिगा आराई नहीं है, मेरा मालिक जानता है। ये कॉलेज का कैलिबर है, ये यूनिवर्सिटी का कैलिबर है। यूनिवर्सिटी में भी कोई बच्चा बच्ची इस कॉन्फिडेंस के साथ पूरी जिम्मेदारी के साथ इस तरह का बामानी प्रोग्राम जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। स्पेशली जो कंपेनर था, मैं भी माजी में छोटा सा कंपेनर था, लेकिन उनके सामने मैं शर्मिंदा रहा। जिस लेवल पर इसने कंपेयरिंग की और जिस लेवल पर जिसने आना है, जो मैसेज दे दी, कितनी बामल थी। हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इन बच्चों को मिल्लत के मुक़द्दर के सितारे बना दे ताकि यही बच्चे आने वाले बच्चों के मसीहा बन जाए। मेरी माँ, मेरी बहनों, आज हम यहाँ पर आए हैं तो हम आपको सलाम पेश करने आए हैं, हम आप बहनों को सलाम अकीदत पेश करने आए हैं। ये इफ्तिखार में ये काम कर दिया, वल्लाह कहता हूँ ये आइंदा के लिए मैं डेडिकेट करता हूँ। सर एजाज को मैं डेडिकेट करता हूँ, मेरे मंजूर को, मेरे अहमद साहब को, उसकी टीम को, इनका किरदार कलीदी है। मैं डेडिकेट करता हूँ माओ को, मेरी बेटियों को, मेरे यहाँ के रज़ाकारों को। आप लोगों की मरकजी किरदार पे आज जमशेद साहब का सर फख्र से बुलंद है, आज इम्तियाज साहब का सर फख्र से बुलंद है, आज शफा साहब का सर फख्र से बुलंद है। आज ताहिर साहब एक अच्छा सा पैगाम लेकर बुबिन के सारे स्कूलों में ये पैगाम जरूर पहुंचाएगा। बुबिन में जब भी बात हो जाएगी, क्योंकि ये नकूस दिल से निकलने वाले नहीं होते हैं जो बच्चे यहाँ आकर परफॉर्म करें। एक स्पीकर तो लंबी तकरीर करेगा, मुझे अभी आप कह दोगे शाम तक बोलो तो मैं बोलता ही रहूँगा, थकने वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा बोलना और एक मासूम बच्चे का बोलने में बड़ा फर्क है। और मासूम बच्चे की जो बोली का हमने वजन करके यकीन जाने मेरे जो कुछ मुझे याद था मैं भूल गया। मैंने कहा यार ये बच्चे इस लेवल के हैं। तो लास्ट में एक शेर यही बता रहा हूँ, किसी भी गुल की हक तलफी न होगी इस गुलिस्तान में, किसी भी गुल की हक तलफी न होगी इस गुलिस्तान में, मिलेगी खुश्क पत्तों तक भी शबनम देखते रहना फज़ाइने गुलिस्तान में। आप सब असातिज़ा माए और रज़ाकारों का खून भी शामिल है, तुम्हें भी याद रख लेंगे चमन में जब बहार आए, तुम्हें भी याद रख लेंगे चमन में जब बहार आए। हम उस वक्त याद करेंगे यहाँ के बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बाकमाल इंसान बने, वो दानिश स्कूल में जाए, अली स्टेशन में जाए। और आज तो बड़े बड़े स्कॉलरशिप के प्लेटफॉर्म में इंशाल्लाह मैं सर एजाज को बताऊंगा, शफा साहब को, हम सब कोशिश करेंगे जो बच्चे इंतहाई टैलेंट है उनके लिए कहीं न कहीं कोई स्कॉलरशिप शर्त है को बच्चा खुद फंड करे। यानी यहाँ से सिफारिश वाला पैनों पे किसी भी बच्चे ने जाना नहीं है तो आप अपने बच्चों की कैपेसिटी को इस लेवल पर बढ़ा देंगे। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला आपकी टीम को और ज्यादा मेहनत करने के साथ इन मासूम बच्चों को बावकार इंसान बना दे। मेरी दुआएं हैं यहाँ के अजीम माओ को अपने बच्चों की अजीम तरबियत का पूरा हक अदा करने की तौफीक इनायत फरमाए। मेरी दुआएं हैं यहाँ की बहनों को
ऐसी साए मोहब्बत जो है इन मासूम बच्चों के ऊपर कर दे, ये बच्चे निकल कर आपकी माथे का जुमर बने और आपकी आइडेंटिटी बने। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात बुरी लगी तो बच्चे हम आपके साथ हैं जब आप हमारे साथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।